A very great morning to everyone. Okay, yesterday, previous lecture, we have seen the concept of what the non-primitive data types we have here, in which we have here what is the difference between structure and union, what is min-max structure. These all the points we have covered. Okay, so linked list part is remaining. That when the unit will start, we covered all the concepts regarding linked list. Okay, so now we are concentrating on. We have actually completed the concept of static and dynamic data structure. Okay, so static means what and dynamic means what. Static means fixed size memory means what exactly whose size is fixed. Okay, for example, if we are declaring any variable, let's say मैंने declare किया int a5, okay, और मैंने program how many numbers I can scan into the array, only 5 elements, okay, not more than that. So runtime में उसकी size exceed नहीं कर सकती. So this is a static concept, and when the data structure which will extend and change its size to fit the data means we can exchange the size or we can increase the size of data means what रन टाइम मुझे लग रहा है कि मुझे 100 एलिमेंट स्कैन करने हैं तो मैं वो कर सकती हूँ यूजिंग लिंक लिस्ट ओके सो डियर स्टूडेंट दिस पॉइंट we are again revise when linked list will started because now you are unable to clear the concept of static and dynamic when you have clear all the concept of linked list how for example we can say that we can concentrate on next point that is insertion and deletion in easy in dynamic so how it is possible uh, नाउ वी आर जस्ट रीडिंग दैट पॉइंट दैट्स इट आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा जब हम लोग लिंक लिस्ट एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे तब आपको ये डिफरेंस समझ में आने वाला है तो ये पॉइंट फर्स्ट यूनिट में दैट्स व्हाई आई एम लिविंग इट बट एक्चुअली उसका हम लोग कंसेप्ट जो भी है वो थर्ड यूनिट में कंप्लीट करने वाले हैं और यही क्वेश्चन मैं आपको फिर से पूछने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक एंड नेक्स्ट पॉइंट विल बी द सेम स्टैटिक एंड डायनामिक में फॉर एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट लिंक लिस्ट एंड एरे डेटा स्ट्रक्चर ओके so these points, when we are starting the unit, you can understand this point very carefully. So I'm just reading that point. Now you are unable to understand each and every concept because we are not clear the concept of linked list now. Okay, so don't concentrate more. We'll revise this point definitely. Okay, so I'm just quoting that point. Linked list means what? The number of elements in list are not fixed. Yes, हम लोग run time data access स्कैन कर सकते हैं ये सिर्फ लिंक लिस्ट से पॉसिबल है इन array size is fixed okay that's why it is static linked list is what dynamic and array is static okay then next point is what we have to use for linked list implementation pointer concept is required so students we have to clear the concept of pointer first then we'll move further the linked list okay so now you are unable to clear the concept of linked list okay so just I'm reading here yes in linked list insertion and deletion is easy how we'll see in practical way and it is insertion and deletion is difficult again this point we have to complete in when we are going to see how the insertion is possible in array how to delete the from that array we'll see later okay these are the types just quoting and some point that is a type of linked list are linear linked list non-linear so what exactly linear non-linear we are going to see and the type of array that is one dimensional two dimensional we can say that it is a multi-dimensional okay and how the searching is slower in linked list how the searching is faster in that array then these 2 points we will cover in depth then you have clear all the points here okay I'm just clearing one point here these points cover comes in first unit that's why I'm clearing it but now we have to revise this point in third unit okay so this point is everyone is clear okay so next point is what is the persistent and imperial data structure again the question is asked in that point that is what exactly persistent data is okay just concentrate persistent means what the data structure that always preserves the previous version of itself when it is modified yes जब वो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं तो भी वो प्रीवियसली जो स्टेप है वो प्रिजर्व करता है so what kind of data structure are and such data structure are effectively immutable we are going to see what exactly it is and their operations do not visibly update the structure in place, but instead always in a new updated data structure. So basically the persistence, the basic concept of persistence is when we are modifying the data in particular data structure, the previous version should be preserved. Okay. So the example is what stack data structure.
So what exactly stack data structure is? Anybody can tell me what exactly stack data structure? कौन बताएगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता है व्हाट इज एग्जैक्टली स्टैक? स्टैक इज linear data structure and it is the process of LIFO, मतलब last in first out concept that we have here. So just concentrate here. Again, this stack concept we are going to see in detail in particular unit, but just now we have to focus on what exactly stack is. Stack जो आपको दिख रहा है, okay, this is one type of array, but the array direction is what? Vertical. Okay, vertically हम लोग array को represent करें, ये array ही है. So what is a stack is? Stack is again linear data structure. It is having only one pointer, that is. Hello. Is there any problem? Yes. Is it visible, everyone? No ma'am, screen visible nahi. Okay, fine. I will join it. There is some technical issues are always there, so that this problem arises. Okay, I'm showing you. Okay, so you just recall the stack data structure now. Okay, fine. So what is exactly stack is? Stack का मैं एक example आप लोगों को बताती हूँ. It's very fantastic example, that is your bookshelf. Okay, so आप लोग जो books use करते हो, it's not visible actually. Okay, let's say आप लोग अभी तो आप लोग घर पे हो. ओके, मान लो आप लोगों ने सारे बुक्स परचेज किए हैं. ओके, डेटा स्ट्रक्चर का है, एफडीएस का है, देन यू आर एक्सेसिंग द डेटा. लेट्स से ओपी का बुक आपने परचेज किया है, डीएम का बुक परचेज किया. ओके, सो यू आर अरेंजिंग द बुक लाइक वन स्टैक, मतलब एक के ऊपर एक आप लोग बुक क्या करते हो? स्टोर करते हो. ओके, सो इज इट विजिबल? प्रेजेंटेशन इज विजिबल? इट्स नॉट विजिबल? No, ma'am. No ma'am. Okay. I'm just giving one example of it. So आप लोग example पे concentrate करो, don't concentrate on presentation now. मैंने क्या बोला है यहाँ पे? Let's say मैं क्या बोल रही हूँ? Suppose I'm taking a notepad here. Okay. So we just concentrate the concept of stack. Just what exactly persistent data structure is, इसके ऊपर हम लोग focus कर रहे हैं. So now I'm sharing that screen. Why Gmail having some problem? We see what happened there. Okay, fine. So I'm sharing one part. Yes. So is it visible notepad? Okay. Suppose मैंने stack Yes data. ma'am. Yes, I'm talking about the stack data structure. Okay. So what exactly stack data structure is? Suppose मैंने बोला if you purchased which books? If you purchased like all subject books, okay, all second year books. Okay. Uh, okay. All second year बुक्स. ओके, सेकेंड ईयर के सारे बुक्स आप लोगों ने परचेज किए हैं. ओके, फाइन. इसमें सपोज फर्स्ट इसमें आया है आपका, जैसे आपने डीएम का बुक परचेज किया, देन सेकेंड एफडीएस का बुक परचेज किया. ओके, थर्ड वन लाइक ओपी का बुक परचेज किया. आफ्टर दैट द फोर्थ वन विल बी डेल. ओके, देन फिफ्थ वन विल बी, फिफ्थ बुक विल बी which subject is remaining? That is CG. ओके, लेट्स से दीज आर योर फिफ्थ सब्जेक्ट. ओके, अभी ये बुक्स आप लोगों ने परचेज किए हैं, उसको अभी आपको क्या करना है? आपके बुक शेल्फ में रखना है. लेट्स से मैं बोलती हूँ आपकी बुक्स की रैक है, बुक रैक. ओके, एक बुक की रैक है, उसमें आप क्या कर रहे हो? आपके बुक सब स्टोर करते हो. ओके, सो बुक स्टोर करते वक्त आप लोग कैसे स्टोर करोगे उसको? हाउ यू आर गोइंग टू स्टोर इट? फर्स्ट आपका आएगा, लेट्स से आपने क्या किया, सेम मैं यही उठा के यहाँ पे डालती हूँ. लेट्स से आपने ये सारे एलिमेंट किसमें स्टोर, बुक्स किसमें स्टोर किए? रैक में स्टोर किए. ओके, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट किया, जस्ट आई एम राइटिंग हियर. ओके, सो दिस इज योर बुक शेल्फ. इसमें आपने पहला वाला जो बुक रखा है, एक्चुअली मैं सीक्वेंस यहाँ पे चेंज करती हूँ. आप जब बुक रखोगे ऐसा कंसिडर करो ये स्टैक है आपका. ओके, तो ये स्टैक है, उसमें आप क्या कर रहे हो? पहला वाला बुक डाल रहे हो, देन सेकेंड वाला बुक डाल रहे हो, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ. लाइक वाइज, मतलब क्या? स्टैक में जो पहला वाला एलिमेंट आप लोग डालोगे, मान लो ये आपका स्टैक है, स्टैक में पहला क्या कि आपने सीजी का बुक डाला, देन डेल का बुक डाला, देन ओपी, देन एफडीएस एंड देन टीएम. मतलब आपको एक ही पॉइंटर है स्टैक को, दैट इज टॉप. स्टैक इज हैविंग ओनली वन पॉइंटर, दैट इज टॉप. मतलब एक ही डायरेक्शन से, एक ही पॉइंटर से हम लोग शेल्फ में डेटा स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो पहले मैंने सीजी डाला, देन डेल, देन टॉप. मतलब पहले स्टैक क्या था मेरा? इनिशियली दिस बुक रैक इज व्हाट? एम्प्टी. ओके,
अभी मैं इसको यहाँ पे दिखाती हूँ. ओके, सो इनिशियली व्हाट हैपन, इनिशियली मैं क्या बोल रही हूँ, इनिशियली मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इनिशियली स्टैक इज एम्प्टी. ओके, जो बुक की रैक है वो आपकी क्या है, एम्प्टी है. ओके, बुक की रैक एम्प्टी है मतलब क्या है, व्हाट हैपन इन दिस केस, जब बुक की रैक एम्प्टी है इसका मतलब है आपका टॉप कहाँ पे है, आपका जो बुक का रैक है वो एम्प्टी, मतलब वो एम्प्टी है, इसका मतलब है टॉप -1 पे है. ओके, इसका मतलब है पहले आपकी बुक की रैक एम्प्टी है, उसके बाद आपने क्या किया, 1 by 1 बुक डाला, तो उसके बाद क्या हुआ, वी हैव टू एंटर द फर्स्ट बुक इनटू टॉप, देन इफ you place or if you store first book into rack, first book into rack. ओके, पहला बुक आपने रैक में डाला तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, देन टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टॉप प्लस प्लस करके फिर आप लोग इसमें वैल्यू डालोगे. ओके, टॉप प्लस प्लस मतलब टॉप कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इनिशियली आपका बुक शेल्फ एम्प्टी है, बुक की रैक एम्प्टी है, देन स्टैक का टॉप प्लस प्लस किया, लाइकवाइज आपने क्या किया, उसमें बुक्स डाले. ओके, सो आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टेक्निकल पार्ट नाउ, जस्ट फोकस ऑन दैट एग्जांपल. ओके, सो पहला वाला बुक आपने डाला, सेकंड वाला बुक आपने डाला, थर्ड वाला बुक आपने डाला, फोर्थ फिफ्थ वाला बुक आपने डाला, मतलब टॉप की वैल्यू कहाँ पे आ गई, यहाँ पे. मुझे बोलो, लेट्स से मुझे अभी ओपी का बुक निकालना है शेल्फ में से, बुक रैक में से, तो पॉसिबल है कि डायरेक्टली ओपी का बुक निकालना. मैं फिर से बोल रही हूँ, इफ आई वांट टू रिमूव if I want to remove book from book rack, which book I want to remove, which book I want to remove, let's say I want to remove book is OOP, OP का बुक मुझे रिमूव करना है बुक शेल्फ रैक में से. सो इज इट पॉसिबल टू रिमूव द ओपी बुक फ्रॉम द स्टैक नाउ, क्योंकि टॉप आपका यहाँ पे है. लेट्स से मान लो आप ऐसे इमेजिन करो, आपका बुक का शेल्फ है, आपने 1 by 1 बुक्स रखे हैं और आपको ओपी वहां से निकालना है, तो इज इट पॉसिबल टू रिमूव, कौन बताएगा मुझे, डायरेक्टली आप लोग बुक में से शेल्फ में से ओपी का बुक निकाल सकते हो, इज इट पॉसिबल, यस एनीबडी No. कैन, नॉट Ma'am. पॉसिबल, यस. ऐसा हो सकता है जो कोई टेढ़े मेढ़े बुक्स रखते हैं, सारे बुक्स एक शेल्फ में डालते हैं, सेकंड ईयर के भी फर्स्ट ईयर के भी, तो उन लोगों के लिए पॉसिबल है, उनका स्टैक नहीं होगा. बट जो लोग प्रॉपरली डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमूव दिस ओपी. सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देन आई हैव टू डू दिस वन पार्ट हियर. एक में पार्ट में आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा. देन फर्स्ट वी हैव टू डिक्रीमेंट द टॉप, मतलब first we have to remove, which book remove करना पड़ेगा, which book we have to remove, कौन सा बुक पहले रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप का पॉइंट कर रहा है डीएम के यहाँ पे, मीन्स फर्स्ट वी हैव, यस, सो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव which book we have to remove, that is DM book. DM. Okay, yes, so we are going to remove the book, that is we have to remove DM book. Okay, so पहले DM का बुक रिमूव होगा, इसके बाद क्या होगा, आपका स्टैक एक टॉप से एक से माइनस माइनस होगा, बाद में हम लोग क्या करेंगे, FDS का बुक रिमूव करेंगे, मतलब FDS भी यहाँ से निकल जाएगा, मतलब मैं अभी डायरेक्टली रिमूव कर रही हूँ, ये रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, मीन्स आई हैव टू रिमूव व्हाट, फर्स्ट 2 बुक्स, देन आई विल रिमूव ओपी बुक. इसका मतलब है स्टैक में एक ही पॉइंटर है, दैट इज टॉप, उससे ही हम लोग वैल्यू डालते हैं और उससे ही रिमूव करते हैं. अभी मुझे बोलो, मैंने पहले 2 बुक डाले, एफडीएस का और डीएम का, मैंने पहले वो रिमूव किया, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ओपी का बुक रिमूव कर रही हूँ. ओके, ओपी का बुक रिमूव किया, ओके, ये भी फिर मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ. ओके, अभी मुझे बोलो, अभी मुझे फिर से एलिमेंट इंसर्ट करना होगा, मतलब क्या, अभी मैं फिर से स्टैक को मॉडिफाई कर रही हूँ, समझ में आ रहा है, ये प्रीवियस वर्जन हो गया, मैंने एलिमेंट भी डाले, उससे निकाले भी, फिर से मैं क्या कर रही हूँ, आई एम अगेन इंसर्टिंग द एलिमेंट इनटू स्टैक, फिर से मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू स्टैक, स्टैक में फिर से मैं एलिमेंट डाल रही हूँ. इसका मतलब है स्टैक का प्रीवियस जो वर्जन है वो मैंने कीप किया, फिर से मैं एलिमेंट इंसर्ट कर रही हूँ, मतलब क्या, अगेन आई एम इंक्रीमेंट द टॉप प्लस प्लस, समझ में आ रहा है, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू स्टैक, दैट इज अगेन आई वांट टू स्टोर द बुक इज एफडीएस बुक मुझे स्टोर करना है, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, अगेन आई एम इंक्रीमेंटिंग, व्हाट आई एम इंक्रीमेंटिंग, इंक्रीमेंटिंग टॉप प्लस प्लस, मतलब मैंने टॉप को प्लस प्लस किया, देन अगेन इंसर्टिंग, मतलब अगेन पुशिंग द एलिमेंट इनटू स्टैक.
मतलब मैं क्या कर रही हूँ, पुश ऑपरेशन कर रही हूँ, पुशिंग एलिमेंट इनटू स्टैक. सो आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस. कि क्या किया मैंने, देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ. वी आर डूइंग वन थिंग हियर, दैट इज what exactly problems are arises for presentation, don't know. Okay, fine. So we are clearing the concept using example, no problem. Okay, so मैंने फिर से क्या किया, फिर से मुझे स्टैक का टॉप एक से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैक का टॉप थर्ड पे जाएगा. फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे थर्ड वाला मेरा जो बुक है वो मैं डालूंगी, दैट इज एफडीएस. मतलब क्या, मैंने क्या किया, स्टैक में एलिमेंट डाले, फिर से स्टैक से एलिमेंट रिमूव भी किए, अगेन मैं एलिमेंट इंसर्ट कर रही हूँ. मतलब क्या, मेरी जो प्रीवियस जो वर्जन था, मतलब मैंने दो बुक्स डाले, एफडीएस भी डाला और डीएम भी डाला, उसको रिमूव भी किया, फिर से मैं इंसर्ट कर रही हूँ. मतलब ये जो प्रोसेस है, इंसर्शन एंड रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, मैं प्रीवियस वाला जो वर्जन है वो मैं कीप कर रही हूँ. समझ में आ रहा है, मैंने स्टैक में एलिमेंट भी डाला, निकाला भी, स्टैक को कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ which data structure we are going to see, persistent data structure. I hope everyone is agree. हम लोग previous version भी उसका keep करते हैं और नया वाला element भी उसमें डाल सकते हैं. So updation and previous version also we are keeping inside. So this is the concept of primitive data structure. So I hope everyone is clear the concept using one example. Any doubt now? Yes, anybody having some doubt related to this? Everyone is clear the concept? Yes. Give me the acknowledgement so that we'll go for next Yes, point. ma'am. Yes, it's Yes, very, ma'am. yes, this is the concept of what? Yes, ma'am. Thank you so much. This is the concept of persistent data structure. Okay, so I hope everyone is clear that concept. Fine. So now we concentrate our next part is on imperial data structure. So what exactly imperial data structure we are going to see here. Okay. So now next part is what? Imperial मतलब क्या होगा? प्रीवियस जो परसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है उसका अपोजिट क्या रहेगा, इंपीरियल डेटा स्ट्रक्चर. सो उसमें क्या होगा, व्हाट यू थिंक, देयर देयर इज, वी आर नॉट कीपिंग प्रीवियस वर्जन देयर. ओके, प्रीवियसली वर्जन हमेशा कीप होगा ऐसा जरूरी नहीं है. वी आर मॉडिफाइंग द डेटा इनटू गिवन डेटा स्ट्रक्चर. सो व्हाट यू थिंक अबाउट कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, एनीबडी कैन टेल मी कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, कौन स्टैक के अपोज में थोड़ा वर्क करता है, एनीबडी को पता होना है. थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, सो यू शुड नो ऑल दिस पॉइंट. यस, एनीबडी? यस, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, क्या हो सकता है इंपीरियल डेटा स्ट्रक्चर? यस, किसी को पता है, कोई बता सकता है? ये देखो, जैसे स्टैक वर्क कर रहा है, स्टैक में हम लोग प्रीवियस वर्जन कीप करते हैं, इसमें कीप होगा जरूरी नहीं है. सो दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सो व्हाट यू थिंक अबाउट क्यू डेटा स्ट्रक्चर? अब तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, सर ने भी आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली क्यू डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सो व्हाट यू थिंक अबाउट क्यू डेटा स्ट्रक्चर? एनीबडी कैन टेल मी what happens is in case of when we are dealing with queue data structure. So I'm giving one example here. Queue data structure के related हम लोग देखने वाले हैं. Suppose I'm giving one example for queue data structure is, let's say now it's working. So I want to show one point here for queue data structure. Then we'll start. Okay. So queue data structure मतलब जहाँ पे हम लोग let's say for example आप लोग offline examination form भर रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा था, कैसे सिस्टम है, आप लोग ऑफलाइन, जैसे आप लोग हमारे एसएनजीबी कॉलेज में क्या होता है, एक रो होता है. ओके, और एक रो में स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और एवरीवन वांट्स टू व्हाट पे द फी और फिल अप द फॉर्म. ओके, आप लोग क्यू में खड़े रहते हो, यस और नो? रहते हो कि खड़े, यस और नो? सब लोग क्यू में Yes, खड़े ma'am. रहते हैं. Yes, everyone is standing in queue. I know that. Okay. So क्यू में खड़े होते हो, जो फर्स्ट स्टूडेंट आएगा उसका पहले फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद दूसरा पर्सन आएगा. ओके, दूसरा स्टूडेंट आएगा, वो पहले क्या करेगा, वो सेकंड वाला फिर क्या करेगा, फॉर्म भरेगा, फिर थर्ड वन, देन फोर्थ वन. मतलब क्यू कंसेप्ट इज व्हाट, जो भी रिजर्वेशन सिस्टम है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, पहला वाला पर्सन आता है, वो उसको पहले टिकट दिया जाता है, देन सेकंड, देन फोर्थ. मतलब हम लोग फ्रंट एंड से क्या कर रहे हैं, हम लोग बैक एंड से क्या कर रहे हैं, लाइन बढ़ रही है. लेट्स से एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरते हो, पीछे से लाइन बढ़ती है और आगे से क्या होता है, रिमूव होता है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, क्यू डेटा स्ट्रक्चर. अगेन वी आर गोइंग टू concentrate on that point. Okay, so is it visible everyone?
Okay, I hope it is clear. So what exactly persistent data structure we have seen? So what exactly imperial data structure is? This is an example of stack data structure that we have seen. So imperial means what? The data structure is partially, there is again the two types of, I forgot to explain the type of persistent, that is, there are two types, partially persistent and fully persistent. So what exactly partial persistent is? If all the version can be accessed, but only the newest version can be modified, दिस इज कॉल्ड एज ए पार्शियली, मतलब हम लोग सिर्फ न्यूएस्ट वर्जन क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, प्रीवियस वर्जन हम लोग एक्सेस नहीं कर रहे. एंड फुल्ली परसिस्टेंट मींस एवरी वर्जन कैन बी बोथ access and modified. Okay, this is theoretical part. We shall concentrate on what a technical concept. Okay, so next will be we have already started the concept of imperial data structure. Okay, so it is not a persistent. This is called as the imperial. So data structure changes over a time. So means how the data structure will change. Okay, just see this example. This is queue data structure. Okay, so queue data structure में मैंने फिर से आप लोगों को one part I am going to share here. So just see, this is one type of array here. Okay, array ही होता है. This is, let's concentrate. Stack and queue में confusion नहीं करना है. Stack भी array है, queue भी array है. There is fixed memory allocation we are giving, but only difference is that stack vertical होता है and queue horizontally हम लोग represent करते हैं. Okay, this is the concept of queue data structure. So queue data structure का हम लोग example देखने वाला है. So is it visible, dear student? Yes or no? So there is No, some ma'am. problem regarding sharing. Okay, fine. So no problem. Now it's visible. Yes, ma'am. ma'am. Okay. So we need to focus on, we are talking about the imperial data structure. Okay. So which data structure? That is queue data structure. Okay. So what exactly queue data structure we are going to focus? Okay. So first of all, queue data structure में let's say मैंने बोला आपका exam form filling system. Okay. So exam form filling जो system है, okay, आप लोगों को पता है ना, वहाँ पे एक issue होता है, कौन बताएगा? Suppose some of the time there is some issue regarding exam form filling. क्या होता है? There is one line. मैं बोलती हूँ एक लाइन बनाते हैं हम लोग. Okay, there is one line. Okay, एक लाइन होती है, लाइन में सब लोग खड़े होते हैं. Okay, all students standing there. Okay, all students standing in front of exam student section. Okay, स्टूडेंट सेक्शन के सामने आप लोग खड़े रहते हैं, है ना. उसमें जैसे जो फर्स्ट स्टूडेंट आएगा, लेट्स से फर्स्ट स्टूडेंट जो आता है लाइन में खड़ा होता है, फर्स्ट स्टूडेंट फिलिंग द फॉर्म, देन सेकंड स्टूडेंट. ओके, फर्स्ट स्टूडेंट फिलिंग द फॉर्म, देन he will left from the line. Okay, from the line, वो लाइन से लेफ्ट हो जाएगा. देन सेकंड स्टूडेंट फिलिंग द फॉर्म, राइट. देन सेकंड स्टूडेंट फिलिंग द फॉर्म. ओके, वो फॉर्म फिलिंग करेगा, फिलिंग द फॉर्म, सबमिट इट टू व्हाट, टू द स्टूडेंट सेक्शन, एंड देन लेफ्ट. ओके, वो लेफ्ट करेगा वो लाइन से. देन थर्ड, लाइकवाइज. व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो स्टूडेंट कहाँ से आ रहे हैं, पीछे से लाइन बढ़ रही है. फर्स्ट स्टूडेंट आता है, वो फॉर्म फिलअप करता है, देन सेकंड स्टूडेंट आता है, वो फर्स्ट स्टूडेंट फॉर्म करके लेफ्ट हो जाता है, देन सेकंड स्टूडेंट आता है लाइन में, वो फॉर्म भर के लेफ्ट हो जाता है. और लाइन कैसे बढ़ रही है, पीछे से लाइन बढ़ रही है और आगे से स्टूडेंट रिमूव हो रहे हैं. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सो यहाँ पे प्रीवियस वर्जन क्यों प्रिजर्व किया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंटर है. सो इन टेक्निकल क्यू डेटा स्ट्रक्चर देर आर टू पॉइंटर्स. टू पॉइंटर्स कौन से है वो हम लोग देखने वाले हैं. टू पॉइंटर्स दैट आर, अगेन वी हैव टू फोकस इन डिटेल इन पर्टिकुलर यूनिट में, ये सारा हम लोग पॉइंट कंप्लीट करने वाला है, बट यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इट. ओके, द टू पॉइंटर्स, फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन दैट इज, उसको फ्रंट बोला जाता है, एंड रेयर पॉइंटर. ओके, सो रेयर से क्या होगा, फ्रॉम रेयर स्टूडेंट विल ऐड इनटू लाइन. ओके, पीछे से स्टूडेंट ऐड होते हैं, एंड द फर्स्ट पॉइंट है जो फ्रंट, फ्रॉम फ्रंट student will remove, isn't it? So these 2 points are very very important as per queue data structure is concerned. There are 2 pointers. First one is front and second one is what, remove. So from front से हम लोग क्या कर सकते हैं,
सो वी आर रिमूविंग द स्टूडेंट, कहाँ से जाते हैं, फ्रंट से रिमूव होते हैं और रेयर से हम लोग लाइन बढ़ाते हैं। तो क्यू में बहुत सारे टाइप्स है। सो मान लो अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, दिस इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, एवरीवन इज क्लियर नाउ, ओके। नाउ अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द मेन पार्ट, दैट इज लेट्स से मैंने दूसरा एग्जांपल आप लोगों को दिया, ओके। ये तो क्लियर हुआ सब लोगों को। सो टेक्निकली वी आर गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ओके। तो टेक्निकली हम लोग फोकस करते हैं उसमें, ये एग्जांपल में आप लोग देखेंगे टेक्निकली क्या हो रहा है, ओके। सो जस्ट फोकस हियर, ये देखो यहाँ पे, इज इट विजिबल एवरीवन? यस, इज इट विजिबल? यस सर Yes, नो? ma'am. ओके। तो यहाँ पे देखो, ये आपका फ्रंट है, मान लो ये फर्स्ट लाइन पे जीरो लोकेशन में पहला वाला स्टूडेंट है, सेकंड वाला स्टूडेंट है, थर्ड वाला स्टूडेंट है। मतलब मैं रेयर से क्या कर रही हूँ, एलिमेंट को ऐड कर रही हूँ, पीछे से लाइन बढ़ रही है और आगे से एलिमेंट रिमूव हो रहा है। मतलब ये पहला वाला स्टूडेंट आएगा, उसका काम हो गया, मतलब क्यू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, एम्प्टी हो जाएगा। फिर से सेकंड वाला स्टूडेंट आ गया लाइन में, उसको भी रिमूव किया। फिर थर्ड वाला स्टूडेंट आ गया, उसको भी मैंने क्या किया, रिमूव किया। अभी मुझे बोलो, आई एम रिमूविंग द स्टूडेंट फ्रॉम दैट क्यू, अभी इसमें प्रीवियस वर्जन कीप होगा क्या? कोई बताएगा मुझे? अभी पहला वाला स्टूडेंट आता है वो निकल जाता है, दूसरा आता है वो निकल जाता है, तो देर इज नो प्रीवियस बैकअप नहीं होता है क्यू में। क्यू में हमेशा अपडेटेड वर्जन लिया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंफेरियल डेटा स्ट्रक्चर। इट चेंजेस ओवर अ टाइम। आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस। दिस इज व्हाट आवर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। आई होप एवरीवन इज एग्री। सो मैं आपको दूसरा एग्जांपल फिर से देती हूँ। फॉर एग्जांपल सब लोग लेट्स से हर कोई अपने भगवान को मानता है ना, हर एक का एक पर्टिकुलर रहता है। लेट्स से मैं गणेश जी को मानती हूँ, गणेश जी मतलब अपने गणेश भगवान, ओके। ओके, भगवान को मैं मानती हूँ, ओके। सो मान लो मैं लेट्स से वहां पे, लेट्स से गणेश जी का जो मंदिर है वहां पे दर्शन के लिए जाती हूँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंसर्न हो गया। लेट्स से हम एग्जाम्पल लेते हैं शिरडी के साईं बाबा, ओके। अभी मुझे बोलो कितने लोग उनको मानते हैं? यस, शिरडी के जो साईं बाबा है, ओके, वहां पे सब लोग Ma'am. दर्शन, यस, ओके, सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं। एवरीवन इज एग्री विद Yes, दिस? ma'am. जाते हैं, Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। Yes. वहां पे जाते हैं। सो आपको लेट्स से आप लोग हमें एक विजिटिंग कार्ड मिलता है और लाइन में खड़े रहना पड़ता है, यस और नो? लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। या ऐसे कोई है Yes. मैडम, ओके, ऐसा कोई है कि मैडम हम लोग वहां पे जाते हैं और हमारा वहां पे पहचान है तो हमारा नंबर लग जाता है, ऐसा बहुत रेयर केस होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज शिरडी का साईं बाबा का दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं, लेट्स से हमारे सारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को मैं लेके गई, हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। एवरीवन इज एग्री? मैं स्टूडेंट की लाइन बनाऊंगी, वन बाय वन स्टूडेंट जाएगा, फिर अंदर जाने की उसके बाद पुजारी जो होता है वो तो रुकने नहीं देता, फटाफट हमारा क्यू खत्म कर देगा, ओके। मतलब इतनी सारी बड़ी लाइन रहेगी। मान लो उसमें से एक पॉलिटिशियन आ गया, ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, कॉन्सेंट्रेट करो। वन पॉलिटिशियन आ गया और ऐसा कोई पर्सन है, लेट्स से वीआईपी पर्सन आ गया, ओके। वीआईपी पर्सन आ गया तो मुझे बोलो वो वेट करेगा क्या? वीआईपी पर्सन आता है नहीं. कभी वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वीआईपी कार्ड रहेगा उसका, डायरेक्टली अंदर जाएगा और क्या करेगा, दर्शन लेके बाहर आ जाएगा। तो मुझे बोलो इस केस में हमारा क्यू सेटिस्फाइड होगा क्या? क्यू का कंसेप्ट क्लियर होगा क्या? हम लोग पीछे से एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, हमारी लाइन बढ़ रही है, आगे से स्टूडेंट दर्शन लेके बाहर जा रहे हैं, बीच में विजिटिंग वीआईपी पर्सन आता है, दर्शन लेता है और निकल जाता है। मीन्स यहाँ पे हमारा क्यू जो है, जो लीनियर क्यू है, क्यू क्यू मेरी वर्क नहीं कर रही है, जो क्यू है वो सेटिस्फाई होगा क्या? इट्स नॉट सेटिस्फाइड। सो इसीलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट क्यू मार्केट में आया, दैट इज प्रायोरिटी क्यू, ओके। उसको क्या बोला जाता है, प्रायोरिटी क्यू। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हमारा क्यू वर्क करेगा। मतलब लीनियर क्यू का काम वहां पे नहीं चलेगा, सडनली जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है वो पर्सन आगे आएगा, दर्शन लेके निकल जाएगा। तो सिमिलरली हमारे टेक्निकल कंसेप्ट में भी प्रायोरिटी क्यू बनाया है। सो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड इन एवरी टेक्निक देयर इज सम ड्रॉबैक। इसका ये ड्रॉबैक्स है कि हम लीनियर क्यू में हम वीआईपी पर्सन को नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारा लीनियर क्यू है, बट ये वीआईपी पर्सन दर्शन लेने के लिए आता है, इसकी वजह से प्रायोरिटी क्यू आ गया, क्योंकि प्रायोरिटी के हिसाब से काम हो रहा है। सो सिमिलरली इन आवर टेक्निकल वे there is priority queue is given. So what exactly priority queue? We'll see in our proper unit. Now I'm focusing on only the concept of what imperial data structure. I hope everyone is clear according to example. Any doubt? किसी को doubt है? So this is a concept of what uh, persistent data structure and imperial data structure. I hope everyone is agree. No need to more explanation. Is it clear to everyone? Okay. So anybody Yes, can ma'am.
Yes, so anybody can tell me what exactly persistent data structure and what exactly imperial data structure. Anybody can give me the answer in short, so that we'll start the next topic. Dear student, from first unit, only 2 points are remaining. That is very important. That is flowchart algorithm. We are little bit clear, but now again I'm revising that point, and we have to focus on time complexity concept. Okay, then our first unit will finish. Okay, so anybody can revise it. Yes, what is meant by imperial and persistent data structure and imperial data structure? You will going to tell me. If you are not answering, then I'm still confused that whether it is clear or not. Okay. So very few students always answering, but anybody from your side or from participants. Yes, what is meant by persistent data stack? सबको clear हुआ? मैंने non technical example में क्यों Yes, दी? ma'am. Yes, yes. So tell me what exactly persistent data structure? Everyone is clear? Okay. Okay, so fine. So we need to move further on next point, that is the next point is our flow chart and algorithm. Okay, so we'll concentrate on that point. So what is exactly flow chart and what is exactly algorithm? So algorithm we have started, dear students. Okay, so algorithm means what? Please give me the answer of algorithm concept at least जो हमारा हो चुका है. Dear student, just give the habit to give the answer because आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट देना बहुत जरूरी है. आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल रहेगा, ओके, जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, always welcome, no problem, you can talk in that language. Okay, if you are bothered about the language, don't take attention about it, you have to speak it out that way. Okay, so again I'm starting the next point, that is algorithm and flowchart. So we have started the concept of algorithm, I hope. Okay, so anybody can tell me what exactly algorithm is? Who is going to tell me? Step by step arrangement of Yes, problem or yes, it is a step-by-step execution of any problem solution. Okay, so algorithm means what? हम लोग step by step प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके, तो इसके ऊपर नो डाउट टीचर्स डे में आपकी जो सीनियर है उसने भी बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया था. ओके, अगेन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पॉइंट द प्रीवियस लेक्चर. ओके, नाउ वी फोकस ऑन व्हाट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इज. So first of all, algorithm, this is the step by step process. What are the characteristics of flow chart? Sorry, algorithm. Anybody can tell me. इसके characteristics भी हम लोगों ने देखे थे. Who will going to tell me what is the flow characteristics of algorithm? Yes, anybody from your side? कोई बताएगा? Yes. What are the characteristics? Characteristics means what? There is a finiteness. Means algorithm, there should be a start and end process is there. Start करना पड़ता है line step by step. जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स हम लोगों को लिखने हैं, उसका एंड होना चाहिए. दिस इज व्हाट द फाइनाइटनेस. ओके, सो दीज आर द characteristics of algorithm that we have seen, but you are unable to, why you are unable to answering, I don't know. Every time you speak it out, dear student, आप लोगों को बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, fine. So we'll start that point. Is it visible now? Okay, so now we have to focus on what is an algorithm. Okay, fine. So algorithm is what? Step by step process to solve the any problem. It is a sequential solution of any problem. It should be written in human understandable form. Yes, हर एक प्रॉब्लम को हम लोग अल्गोरिदम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. The previous, I guess, starting lecture we have clear the concept of what kind of problems are there. There are 4 types of problems. Then well defined problem, poorly defined problem. Okay, there are daily routine problem or non-routine problem. These are the problems are there. How to solve that problem? There are 2 types. Step by step you can solve the problem, and second one, the heuristic process, means shortcut process that we have seen. Okay, so we are focusing on step by step process, that is algorithm is. Okay, so this is an example of one algorithm, that is if I want to do the sum of 2 numbers. So क्या करना पड़ता है? Again we are revising. Step 1 में क्या होगा? Start. It is pure English, human readable language. Okay, and there is no bother about the program concept here. Language barrier नहीं है.
आप लोग प्लेन इंग्लिश स्टेटमेंट में एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर यू कैन राइट द एल्गोरिदम ऑफ इट। ऐसे नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम है इसलिए एल्गोरिदम करना है, नहीं। आप लोग लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व करना है, यू हैव टू राइट डाउन द एल्गोरिदम ऑफ इट। ओके, सो फर्स्ट वन इज स्टार्ट, then second step I want to perform the sum of two numbers, so enter the two numbers, firstly हमें enter करना पड़ेगा, let's say in A and B, then step 3 is add number A and B and store into C and the display that result, okay, and the ending that process, okay। so ये algorithm है, हम लोग step by step लिखते हैं, okay। so now we need to focus on this is second example, we are revising this example next time, okay। these are the properties of algorithm, this is finiteness, properly defined and all, input, output, effectiveness, that point we have clear already, independent to any other programming languages, yes, programming languages independent नहीं है, input output specify करना जरूरी है, what exactly effectiveness when we are processing that problem, okay। so this is algorithm